motion in one dimension. The chapter has lot of numericals and objectives. So in today's class, we will cover motion under gravity. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन. V equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. The ray optics classes are in evening. I have sent you the message. Motion in one dimension and motion in one plane will be in morning. एक और इक्वेशन आप लोग लिखिए एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड u plus v by 2 equal to s upon t. तो थोड़ा बात कर ले. u is initial velocity, v final velocity, s displacement. S is the displacement. S is the displacement. T time. The displacement can be positive as well as can be negative. A is the acceleration. तो मोशन अंडर ग्रेविटी को हम कुछ टाइप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. We will divide motion under gravity in some type of questions. It is a part of kinematics. And one more equation, which is we need to study. Distance traveled by the body in tth second of journey. अब देखिए थोड़ा इसको समझिए. tth second जैसे आपसे पूछा गया, suppose you are asked what is the distance traveled by the body in fifth second of journey. So fifth second is a particular second. When first 4 seconds are over, the fifth one start. It is a 1 second. But which one? Fifth one. If you are asked what is the distance traveled by in 5 seconds, so you will use s equal to ut plus half at square. But if you are asked what is the distance traveled by the body in fifth second, then you will use this equation st equal to u plus a by 2 2t minus 1. इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा इक्वेशन, ये बड़ा स्पेशल इक्वेशन है. अब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 10 सेकंड्स, तो आप यूज करिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बट इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10th सेकंड ऑफ जर्नी, 10th, अब 10th सेकंड ऑफ जर्नी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा st इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2t minus 1. So please note it down. So we will have a schedule of ray optics in evening. In morning, we will have motion in one dimension and motion in one plane. And after the backlog of ray optics is completed, जब ray optics का backlog complete हो जाएगा, तब हम semiconductor का backlog cover करेंगे. So you need to attend some extra classes for 2-3 weeks. उसके बाद backlog cover हो जाएगा, तो फिर कोई problem नहीं आएगी.
then you will not have any trouble. So please note it down. और अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, साइन कन्वेंशन होता है, तो वो आपको एक रूल नोट करना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा इसको ध्यान रखिए, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी is considered positive direction. Second point, G always acts in vertically downward direction. तो पहला टॉपिक हम लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, motion under gravity. That will be our first topic. In kinematics, in motion in one dimension. So please note down. So we will do a lot of numericals. We will enjoy these classes. तो इसमें सबसे पहले कुछ आपको बातें कर लें. G is acceleration due to gravity. अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ. The direction opposite to the initial velocity. तो लिखिए आप, the direction opposite to the initial velocity. The direction opposite to the initial velocity is considered negative direction, is considered negative direction, is considered negative direction. तो इसको आपको ध्यान रखना है. The direction opposite to the initial velocity is considered negative direction. The direction opposite to initial velocity is considered negative direction. तो हम यहाँ पे इसको लिख ही लेते हैं. Better to write it before we make a start. तीसरा point, direction opposite to initial velocity is negative direction. Negative direction. और एक और पॉइंट है जो हमें लिखना चाहिए, minimum distance between initial point and final point is the displacement. अब displacement can be zero, can be positive, can be negative. जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है.
It can be positive, it can be negative, it can be zero. तो इतने पॉइंट्स आपको नोट करने हैं बिफोर वी मेक ए स्टार्ट. सबसे पहले हम करने की कोशिश करेंगे, we will divide the question in types so that it will become easier for you to solve the questions. Let's make certain ready-made formula for the solution of questions. Okay, some internet issue is coming. So are you done with this? Okay. Again, I'm announcing that in evening we will have the ray optics classes, and in morning we will have motion in one dimension, then kinematics. This is the first week schedule, and in this week ray optics will be covered totally. In ray optics classes, we will solve some objectives as well as we will complete the theory. Number two, next week in morning we will have the follow the regular schedule. In evening we will complete semiconductors. So you'll have to stay with us. Okay, so I am moving to the next slide. So let's begin with it. देखिए, अब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत जरूरी है. तो टाइप 1 में आप लिखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस. देखिए, टाइप 1, when a body is dropped from height h, from height h, this is our ground, body is dropped. Drop body, the initial velocity of drop body is always 0. After some time, definitely ये जो बॉडी है ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. तो आप देखिए, एंड यू नो दैट g ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर हम v इक्वल टू u प्लस ए टी को यूज करेंगे और सपोज करिए यहाँ 0 सेकंड टाइम है एंड बॉडी रीचेस द ग्राउंड इन हाउ मेनी सेकंड्स, t सेकंड. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो u तो 0 हो गया, एक्सलरेशन हो गया यहाँ पर इक्वल टू g. So v equal to gt first. Now if we use v square equal to u square plus 2as, it will become 0 square plus 2gh. So v can be written as root of 2gh. V is the velocity. V is the velocity with which the body strikes the ground. अब देखिए, इस वेलोसिटी को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस वेलोसिटी को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो तरीका हो गया आपका v इक्वल टू जी टी. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, तो आपको वो टाइम मालूम होना चाहिए जिसके t मालूम होना चाहिए. t वो टाइम है जिसमें बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है. क्वेश्चन को पढ़ के हमें एनालिसिस करना होता है कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करें. ये इक्वेशन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको हाइट गिवन हो.
आप इस वेलोसिटी को दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग टू फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब हम बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यूज करें तो ये हो जाएगा एच, ये जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर आपको h मालूम है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, अगर आपको टाइम मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हैं, h। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लगाना पड़ता है कि कौन सा इक्वेशन यूज करें। तो t इज द टाइम इन विच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड, ये भी मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, t इज द टाइम इन विच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड, t is the time in which body reaches the ground। सिंपल है, आप करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। अब देखिए एक और चीज इसमें हम यहाँ पर करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी, लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। अब देखिए लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी इज द टीएथ सेकेंड, इज द टीएथ सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए, एटलीस्ट चार लोगों को चैट करना चाहिए, वाई 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 मीन्स डन इट। अब देखिए आपके फॉर्मूले तैयार हैं, आपको डायरेक्ट बस थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आर यू डन विद दिस? ओके, दैट्स गुड। ओके, तो अब देखो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप इसको इस तरह से, पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम सीख लें, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आपसे बोला एक बॉल को 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी निकालिए, विद विच वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। आपको मालूम है हाइट दी है तो आप सीधे इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और हाइट दी है तो आप कितने टाइम में बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट ऑल्सो। तो हम बात कर रहे थे लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी, लास्ट सेकंड अगर मान लीजिए बॉडी, सपोज द टाइम ऑफ फॉल इज 8 सेकंड, मान लीजिए बॉडी 8 सेकंड लेती है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बॉडी टेक्स 8 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, तो लास्ट सेकंड क्या होगा बच्चों, 8 सेकंड। अगर बॉडी ग्राउंड पर 5 सेकंड्स में रीच करती है तो लास्ट सेकंड क्या होगा, 5th सेकंड। तो जो टीएथ सेकंड होता है दैट इज द लास्ट सेकंड। तो इसको भी अब हम अगली स्लाइड पे कर लेंगे, एस टी विल बी, इसको यूज करते हैं 2t-1, यू तो जीरो हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी विल बी
और एक्सलरेशन क्या हो गया, जी हो गया g/2 इंटू 2t-1। अच्छा, पिछले इक्वेशंस को भी यहाँ लिख देते हैं, v इक्वल टू जी टी, v इक्वल टू रूट h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। तो एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, टाइम ऑफ फॉल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, अपॉन द मास ऑफ बॉडी। अब आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर टू मासेस, देयर आर टू बॉल्स, द मास ऑफ वन बॉल इज 100 ग्राम और सेकंड बॉल का मास है 200 ग्राम, बोथ आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, तो कौन सा बॉल पहले पहुंचेगा? बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। देखिए, ये टाइम डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है? हाइट है। टाइम डिसाइड करने वाला फैक्टर, what you want to understand, g/2 2t-1। ये तीन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, तीन फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। टाइम ऑफ फॉल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, इसमें आप बताइए मास कहां पर है? मास दिया हुआ है इस फॉर्मूले में। टाइम ऑफ फॉल सिर्फ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फॉल सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कहलाता है हाइट। वो कहलाता है, वो फैक्टर कहलाता है हाइट। दैट फैक्टर इज कॉल्ड हाइट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब जैसे एक क्वेश्चन करके इसको क्लियर करते हैं। टू बॉडीज ऑफ different masses m1 and m2 are dropped from the heights A and B. The ratio of time taken by time taken by the two to cover these distances is, first answer m1 upon m2, second answer A by B, third answer root A is to root B, fourth answer m1A upon m2B. If you're done with this page, तो आप मुझे बताएं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। पहली बॉडी को ए हाइट से ड्रॉप किया गया, दूसरी बॉडी को। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइम ऑफ फॉल इज proportional to root h, t1 upon t2 इक्वल टू रूट ऑफ h1 upon h2। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो इसका आंसर हम इतनी स्पेस में भी निकाल सकते हैं, t1 upon t2 इक्वल टू रूट ऑफ a टू रूट ऑफ b। ये हो गया आंसर। मैं ये कहना चाहता हूँ, आई अगेन वांट टू रिपीट इट, कि टाइम ऑफ फॉल
कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। पहले इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ओ लेवल के, फिर थोड़े इसकी लेवल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये आप सीख जाओगे। ओके, सो आर यू डन विद दिस? आपने इसे नोट कर लिया? यू शुड चैट विद मी, आपको चैट करना चाहिए। और जिस स्पीड से मास ग्राउंड पर पहुंचता है, तो देखो एक्चुअली वो भी मास पे, यहाँ मास का कोई भी रोल नहीं है। तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? एक, दो, तीन, और ये हो गया हमारा चौथा। ये फॉर्मूला हमने इसी से निकाला है। तो ये आ गया आपका रूट ए टू रूट बी। अब देखिए, जब आप किसी भी बुक या मटेरियल को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम और करते हैं। A ball is dropped from a height. It reaches the ground in 4 seconds. Find the height. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे वाले भी आएंगे। एनजी इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो आंसर भी लिख देते हैं। 80 मीटर, 40 मीटर। थर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। डी 160 मीटर। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन। आपको मालूम है हाइट इज व्हाट, हाफ जी टी स्क्वायर, 1/2 into 10 into 4 square, 5 into 16, so simple, 80 मीटर। तो ये what I want to tell you, you will have to make a system of solution। पहले एक कंसेप्ट को समझ लिया, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसी पर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सीधी बात है, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन बनेंगे तो सब अच्छा। देखिए रिलीज और ड्रॉप का मतलब एक ही होता है। कई क्वेश्चंस में लैंग्वेजेस आती है, बॉडी इज रिलीज्ड, इसका क्या मीनिंग है? भाई इनिशियल वेलोसिटी रिलीज मतलब छोड़ दिया, मतलब हमने उसको किसी भी तरह का इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया। जब हम बॉडी को किसी भी तरह का इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं करेंगे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम लाइन। अ बॉडी is released from the top of a tower। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहे हैं। ऑफ हाइट एच, ऑफ हाइट एच, it takes t second to reach the ground। अब थोड़ा लेवल चेंज होगा, टू रीच द ग्राउंड। वेयर विल बी द बॉडी आफ्टर t second? Now they have given four answer।
at h by 2 from the ground. Option B, at h by 4 from the ground. ऑप्शन सी, डिपेंड अपॉन। देखिए ऑप्शन सी बहुत बढ़िया है, डिपेंड अपॉन मास। तो मास पे तो कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। कितनी गलत बात है, ये तो हम रिजेक्ट कर देते हैं भाई। फोर्थ ऑप्शन, एट 3h by 4 फ्रॉम द ग्राउंड। अब थोड़ा क्वेश्चन को क्या करा हमने, चेंज कर लिया। तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट we can solve it. Are you done with this? तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है कि बॉडी कहाँ होगी। तो और इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप एक बेसिक रूल बनाइए। रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ a rough sketch. So by seeing that rough sketch, अगर हम स्केच बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या गिवन है और क्या करना है। तो मेक दिस हैबिट। अब देखिए आगे हम अगली स्लाइड पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अवर ग्राउंड। यहां से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। हाइट इज h, ये टाइम इज 0 सेकंड। इसी स्केच की बात कर रहा था। आफ्टर एक मिनट, और क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है हमें। t/2 सेकंड कर लीजिए आप इसको। t/2 सेकंड पे पोजीशन निकालनी है। और t सेकंड में तो बॉल हमारी कहाँ पहुंच जाती है, ग्राउंड पर। इट रीचेस द ग्राउंड इन t सेकंड। सो वी नो दैट h equal to half gt square। h equal to half gt square। स्मॉल h इज गिवन, ये तो हमें पता है। लेकिन हमसे पूछा गया t/2 सेकंड पे बॉल कहाँ होगी। तो सपोज करिए कि t/2 सेकंड पे बॉल यहाँ होगी। तो लेट अस कैलकुलेट the distance traveled by the body in t/2 सेकंड। तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। Let this distance is y. So using s equal to ut plus half at square,
तो ये तो 0 है। y इक्वल टू, अच्छा टाइम भी हमें गिवन है, we are given the time, we have to calculate for the time t by 2, so it is t by 2 whole square, so y will be 1 by 2 gt square into 1 by 4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, h, तो h by 4, अब हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है, h by 4, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ग्राउंड से, h में से h by 4 को माइनस कर दो तो कितना होगा 3h by 4। अब देखिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ऊपर से हाइट कितनी है, h by 4, और ग्राउंड से पोजीशन क्या है, 3h by 4। ग्राउंड से पोजीशन क्या है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर की जो वैल्यू थी, हाफ जी टी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, h थी, दैट आई हैव यूज्ड दैट वैल्यू टू पुट इट ओवर हियर। तो अब हमें पता चल गया, तो थोड़ा अब हम पीछे जाएंगे, तो हम आंसर टिक करना चाहते हैं, वी वांट टू टिक द आंसर। ये तो नहीं है, मास वॉल्यूम को तो हटा ही दिया, एट h by 4 फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं, एट 3h by 4 फ्रॉम द ग्राउंड, द आंसर इज टी। ये देखिए ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, 3h by 4, 3h by 4, so it becomes very easy। आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करिए, क्वेश्चन को कैटेगरी में डिवाइड करना सीखिए। आपको एग्जाम पास करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। नहीं बनता है, नहीं बनता है, हम हमेशा बोलते हैं, पर हमारी कोशिश भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बनेगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, सो आर यू डन? ओके, ये आपने कर लिया। अब इसमें हम एक और अच्छा क्वेश्चन करना चाहेंगे। You will not find this question in any of the book which I am solving for you. ओके, तो देखिए, a body is dropped from the top of a tower. ड्रॉप बॉडी है, हमारा केस बन गया। इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, 3h/4 आंसर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इतनी हाइट कितनी है, इतनी हाइट कितनी है, h है, इतनी हाइट कितनी है, y है, तो ये क्या होगा, h माइनस y, और h माइनस y क्या होगा, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकालना है भाई, सिंपल। 1 में से 1/4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3/4। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? आपको समझ में आया? आया? आप बात करिए, ठीक है, तो पूछिए, दैट्स वेरी गुड, पूछना चाहिए। भाई देखो, आपका ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, h है, लेजर से देखिए ये हाइट कितनी है, h है, और t/2 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, y। तो अगर हम h में, तो ये ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, इस वक्त बॉडी की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, h में से हम y को क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, h में से हम y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई थिंक आप क्लियर होना चाहिए। The bodies drop from the top of a tower. In last second of journey, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। In last second of journey, it travels 9/25 part of height of tower. Find. यहाँ हमें दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल का मीनिंग यहाँ बड़ा सिंपल है कि इन व्हाट टाइम द बॉडी रीचेस द बॉटम ऑफ टॉवर, इसे हम टाइम ऑफ फॉल बोलेंगे। हाइट ऑफ टॉवर, टेक g इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये देखिए क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने आपको बताया था हमें क्या करना चाहिए, हमें स्केच बनाना चाहिए। ये हमने टॉवर बना ली, हमने सपोज कर लिया कि टॉवर का हाइट कितना है h, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, और यहां से हमने बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप कर दिया। तो हमने सपोज किया लेट बॉडी रीचेस द ग्राउंड इन t सेकेंड। आपका फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन सबका अच्छा होगा। विद इन 2 और 3 वीक्स आप इस पोजिशन में आ जाएंगे कि आपके और पेपर और ज्यादा अच्छे होने लगेंगे। अगला तो अच्छा होगा ही, उसके बाद अगले और अच्छे होंगे। तो देखिए अब हम इक्वेशन लगा दें डायरेक्ट, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कोई डाउट ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस traveled by the body in last second will be st will be 0 g by 2 2t minus 1, but given st इक्वल टू, ये मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स थोड़ी टफ तो होगी, 9/25 h, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 9/25 h, इस जगह पुट कर दिया। st का ये वैल्यू गिवन है g by 2 2t minus 1। आप इसको नोट कर लीजिए, हमें और ज्यादा जगह की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। We will be needing more space. Are you done with this? आप देखिए जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करते जाएंगे, सारी चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। And I have developed a particular method of teaching
तो वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में हेल्प होगी और आपसे पेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ये बात पक्की है। टाइम लगेगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये देखिए, ये अब हमारा, अब कौन सा इक्वेशन हो गया, इसको आप एक्चुअली क्या करो, आप सेकंड इक्वेशन बना लो। आप चैट नहीं कर रहे हैं। लास्ट सेकंड, अगर बॉडी टोटल टी सेकंड तक फॉल हुई है तो बच्चों लास्ट सेकंड क्या होगा, टी एच सेकंड ही तो होगा। और लास्ट सेकंड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू टी माइनस वन। और ड्रॉप बॉडी की तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। सो आर यू डन विद दिस, सभी ने कर लिया इसको। तो हम अगली स्लाइड पे जाएं। अब हम करने क्या वाले हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो एच की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन से हम एच की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा। फिर हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, देन वी विल सॉल्व दैट इक्वेशन। ओके, सो सिर्फ दो या तीन लोग ही हैं जो बताते हैं कि ये आज बड़ा अच्छा हुआ, आज बच्चे पूछ रहे हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। दिस इज वेरी गुड, लगता है आपसे और। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 9/25 एच में इसको पुट करने जा रहा हूँ। एच को पुट करने जा रहा हूँ हाफ जी टी स्क्वायर, तो ध्यान देना कैसे होगा। 9/25, एच की जगह रख दिया हाफ जी टी स्क्वायर। और आप फिर से एक स्लाइड देख सकते हैं, जी बाय टू इंटू टू टी माइनस वन, जी बाय टू इंटू टू टी माइनस वन। अब देखिए क्या करना है हमें, ये जी बाय टू को, जी से कैंसिल, और ये जो आपका क्या है, टू, इसको भी कैंसिल कर दो। तो अब आपको मिलेगा 9/25 इक्वल टू, सॉरी, टी स्क्वायर इक्वल टू टू टी माइनस वन। सो इट विल बिकम 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 50 टी माइनस 25। अब ये स्टूडेंट की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पाते, तो मैं आपको अब एक चीज बता दूं। जैसे इस तरह का क्वाड्रेटिक आए, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको सीखिए आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए, ये है हमारा इक्वेशन, 9 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 25। ए यहाँ पर कितना है, कंपेयर करिए, 9, और बी कितना है, -50, और सी क्या है, 25। इस टी वाले फॉर्मूले में रख दो, ये +50 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 2500 माइनस 4ac माइनस 900, इजी है, 2a दैट इज 18। सो टाइम विल बी +50 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 18। तो बच्चों टाइम तो निगेटिव नहीं होता है, फिर भी हम +-40 ले रहे हैं। 18, पॉजिटिव साइन लीजिए, तो टाइम आ जाएगा 50 + 40, 90 डिवाइडेड बाय 18, कैंसिल कर दीजिए, तो टाइम ऑफ फॉल आ गया 5 सेकंड। अब देखिए, निगेटिव साइन अगर लेंगे, उसको भी समझना चाहिए,
कि भाई नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा। इफ वी टेक नेगेटिव साइन तो थोड़ा उसको रेड में ही टाइप कर देते हैं, थोड़ा रिस्की हो गया। तो टाइम आ गया 10/18 रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि 10/18 इज लेस देन 1। तो बॉडी लास्ट सेकंड में तो ट्रेवल करती है, तो उसका टाइम ऑफ ट्रेवल, टाइम ऑफ डिसेंट डेफिनेटली, टाइम ऑफ ट्रेवल, टाइम ऑफ डिसेंट डेफिनेटली 1 सेकंड से तो ज्यादा है। इसलिए हमने नेगेटिव साइन लेंगे तो 50 - 40/18, 10/18, और 10/18 इज लेस देन 1। तो टाइम ऑफ फॉल आ गया, कितना आ गया भाई? टाइम ऑफ फॉल आ गया आपका कितना? 5 सेकेंड। अब बची रही बात हाइट ऑफ टॉवर की, तो भाई वो भी निकाल लेंगे। दैट वी विल आल्सो कैलकुलेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। What is the basic characteristic of a person who is successful in the life? Simple. The person must be a knowledgeable person. Knowledge of business, knowledge of anything. Skillful person. तो यहाँ आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। आर यू डन विद दिस? फटाफट करना है, हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं। कोई चैट नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, बोलना पड़ता है आप लोगों से। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों से कहना पड़ता है। अब हाइट ऑफ टावर तो देखो यहाँ पीछे हम निकाल लेंगे। ये देखो हाइट ऑफ टावर तो हमें मालूम है कितनी है। यहाँ हम टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो वही करने जा रहे हैं। तो हाइट ऑफ टावर भी निकाल लेते हैं भाई। ½ GT²। जी की वैल्यू से मत घबराइए। 9.8, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 4.9 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। और थोड़ा 12.25 नहीं आएगा। डेसिमल एक्चुअली क्या है, आप देखिए डेसिमल 1 पॉइंट पर है। और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, मेमोरी ट्रिक। ये क्या था? 9/25। तो आपका आंसर क्या है? ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं ना आपको 25, इसका स्क्वायर रूट ले लो 5, यही टाइम होगा। दिस विल बी द दिस विल बी द टाइम। ओके, सो यू आर डन विद दिस। आगे बढ़ते हैं। यू विल एंजॉय दीज क्लासेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो आज ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। कहाँ कर पाएंगे कहाँ नहीं कर पाएंगे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम एडवांस टॉपिक की बात करें, वी आर बीइंग इंजीनियर्स, तो हम बहुत एडवांस मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग अपने कोर्सेस में। अब देखिए, सेकंड केस करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा।
body is projected vertically upward from the ground. From the ground. ये ग्राउंड है, वर्टिकली अपवर्ड है ना। अब ये मान लीजिए इसको हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो g है इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। मान लीजिए जब बॉडी h हाइट पर रीच करती है तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है इसलिए रिटार्डेशन का केस बनेगा। तो हमें पता चल गया कि u बाय जी सेकंड के बाद, अब देखिए हम यहाँ ऐसे लिखना चाहेंगे, we would like to write, तो हम यहाँ थोड़ा एक स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, आफ्टर u बाय जी सेकंड body will reach the point of maximum height. मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे हम h मैक्सिमम बोले तो अच्छा रहेगा। -2g h maximum, so 2g h maximum equal to u square, maximum height is u square by 2g। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये दोनों केसेस याद रखते हैं तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कई क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें ऐसे लिख भी देना चाहिए कि कितना है, u स्क्वायर बाय 2g, इसे नोट कर लीजिए। सो आर यू डन विद दिस, आपने इसे कर लिया। ओके